Hello student, welcome to our today's class. Let's see some other topics in our class. Today we are going to see what is the drop cap. Okay, have you seen this? ये सिंबल आप देख रहे हो. इस सिंबल में क्या दिख रहा है आपको? एक जो लेटर है वो सबसे बड़ा दिख रहा है और उसके बाद आपको नॉर्मल साइज में आपका बाकी का टेक्स्ट दिख रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे ये ऊपर का एग्जाम्पल देखिए. आई देखिए कितना बड़ा है. ओके और उसके बाद सारे लेटर्स जो है वो नॉर्मल साइज में है. तो इस तरीके के फॉर्मेट में जब हम लिखते हैं तो उसको कहते हैं ड्रॉप कैप. अब आप ये ड्रॉप कैप जो है कहाँ पे देखते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी सच काइंड ऑफ ड्रॉप कैप इन द न्यूज़पेपर और द मैगजीन्स आर्टिकल. ओके, आप या फिर स्टोरी बुक में भी आपको इस तरीके का ड्रॉप कैप दिखता है. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गिव सच काइंड ऑफ ड्रॉप कैप टू अवर paragraph. So what you have to do, you just have to go to the insert tab, then go to the text group and then click on the drop cap. Okay, then after clicking the drop cap means in the drop cap you will find out such kind of drop cap button. Okay, this is the symbol. Okay, a new window showing options will open and then you have to choose the option what means how you would like to see your first letter in the paragraph, and according to that your paragraph will be appear to you. Okay, after this we are going to see our new topic, that is the paragraph formatting. Paragraph formatting means whatever the paragraph you have written, okay, to where what formatting you want to give, that we are going to say in this topic. Okay, so what you will do, see, if you observe this picture, you will see that there is a line and paragraph spacings. Okay, what this picture about? This picture about line and paragraph spacing. So here with the help of this, with the help of the paragraph formatting, you can give the spacing between your line. Okay, means you just observe here every line having some specific space. ये जो हर लाइन के बीच में जो स्पेसिफिक स्पेस है उसको आप इस ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो. ओके, आप चाहो तो जैसे देखिए ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन के बीच में काफ़ी स्पेस है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1.15 ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है. ओके, देन आप यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के पहले मतलब पैराग्राफ के ऊपर में अगर आपको स्पेस देना है तो भी आप इस ऑप्शन के थ्रू दे सकते हो, या आपको आफ्टर पैराग्राफ स्पेस रिमूव करना है या देना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सो first of all you have to go to the home tab, then go to the paragraph and then click on the line and paragraph spacing. Then you will find out the line on paragraphs, this block will come. Okay, and from that as per your choice you select any option, and regarding that the formatting will appear in your paragraph. Okay, here are some shortcut keys also there. For one line spacing you can directly give through your keyboard by pressing Ctrl and plus button, plus one button. Then if you want to give 1.5 line spacing, then you can do it by Ctrl plus 5 button. Okay, and if you want to give the two space between the line, then Ctrl plus 2. Okay, so it's not very difficult to understand and remember, so you just go through it and by heart all these shortcuts. Okay, so come to the next topic, that is the paragraph spacing. Before that what we had seen, we had seen that the paragraph formatting. Okay, this is the paragraph formatting means in paragraph formatting we mainly focused on the line spacing between text. Okay, in paragraph spacing what we are going to see, we are going to see the spacing between the paragraphs. Okay, see how you will get it. First of all you have to go to the home, then style, then click the change style. Okay, see here you will find out like this. When you will click the home button, this kind of interface you will see, and there you will find out this
AA, see here I'm enlarging this, AA, double A letter you will see, and there you will observe there is written change styles, and there is an arrow also. Okay, if you click that arrow, then such kind of drop down means pop-up will come. Okay, and from that you have to choose the paragraph spacing, and from that then this interface will come. Okay, and from this interface whatever you want to add in your paragraph, you can add it. Okay, like no paragraph space or compact. No paragraph space means if I change the paragraph, there will be no place, no space. Okay, compact means it will be, the paragraph come very closed and it will look like very compact form. Then it's a tight or open or relaxed or uh, dub or double. Okay, so like this options will come, and according to that, whatever option you will choose, your paragraph show the changes. Got it? Then intent. Now what is meant by the intent? So first, before going to start our topic, first of all, see this paragraph. Okay, now here what, see फर्स्ट लाइन इंटेंट. यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो पहला लाइन है उसको हमने कुछ स्पेस दिया है, कुछ इंटेंट दिया है. ओके, और बाकी का जो है वो नॉर्मल है. और यहाँ पे देखिए इस तरीके का अगर इंटेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट लाइन इंटेंट. यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन को इंटेंट नहीं है, बाकी सारे पैराग्राफ को इंटेंट है. इस तरीके से अगर आपका पैराग्राफ अपीयर होता है, सो वी विल कॉल इट एज अ हैंगिंग इंटेंट. ओके, सो आपको एक इंटेंट का वो जो है क्या कहते हैं, एक आइडिया आ गया है. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटेंट. इंटेंट रेफर टू द एडिशनल एम्प्टी स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड द मार्जिन ऑफ द पेज. ओके, इंटेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, जो कि आपके मार्जिन और आपके टेक्स्ट के बीच में. जैसे कि देखिए ये जो है यहाँ पे मैंने एक मार्जिन सेट की है. मार्जिन बोले तो आपका हर सेंटेंस जो है वो एक स्पेसिफिक स्पेस के बाद शुरू हो रहा है. ये क्या है, दिस इज़ द मार्जिन. ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मार्जिन दी है, लेकिन ये पूरे पैराग्राफ को देखिए यहाँ पे स्पेस दिया है. तो आपके मार्जिन से लेके आपके टेक्स्ट तक जो हम स्पेस देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इंटेंट. ओके, आप इसको टैब बटन क्लिक करके भी इंटेंट दे सकते हो, जो कि आपके टेक्स्ट को एडिशनल एम्प्टी स्पेस देगा. ठीक है, या फिर हम ऐसा करेंगे, आप होम पेज पे जाएंगे, आप अपने टेक्स्ट को टैब बटन से इंटेंट दे सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटेंट होता है 1/2 इंच का इंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा. ठीक है, और ओके अभी आप इंटेंट कैसे दोगे, देखिए टैब से तो आप दे ही सकते हो, बट यू कैन गिव इट बाय some options also available in your MS Word. So first of all you have to go to the home page. Okay, then home, then go to the paragraph, and then you will find out the decrease intent or increase intent. Okay, so आप अगर उसको क्या करते हो, इंटेंट इसे क्लिक करते जाओगे तो जो भी आपका स्पेस था मार्जिन और आपके टेक्स्ट के बीच में वो कम कम होते जाएगा. और अगर आप इंक्रीज पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा. देखिए यहाँ पे आपको दिया भी है, लेफ्ट में कितना इंटेंट चाहिए, राइट में कितना इंटेंट चाहिए. यू जस्ट अप्लाई ऑल दिस थिंग्स in your document and you will understand what change will come. Okay, now we want to give the borders. Okay, see, हमें बॉर्डर्स देने हैं इस तरीके के, जैसे कि देखिए ये हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट के आजू बाजू में हमें कुछ बॉर्डर्स देने हैं. तो आप कैसे दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट. आपने सबसे पहले क्या करना है, होम पेज पे जाना है. ओके, देन वहाँ पे पहले तो यू हैव टू ओपन द वर्ड, देन टाइप देयर समथिंग. ओके, देन सेलेक्ट दैट पोर्शन, देन गो टू द होम एंड देन पैराग्राफ, and then go to the borders button. Okay, if you go to the border button you will see such kind of borders option over there.
Okay, from these options you can give any kind of borders to your paragraph. Okay, then in the borders you will see the style. Okay, means do you want a box type of border, then what style you want, means border कैसा आना चाहिए, ऐसे डॉट 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 करके आना चाहिए या ऐसे फुल लाइन में आना चाहिए, किस तरीके का बॉर्डर आपको चाहिए, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो. Understood? And after applying all these things, just click the OK, and whatever the changes you had done in your document, it will appear in your document. Okay, then come to the next page. Then here is the shading. Shading में देखिए क्या कर सकते हो, the same thing again. You just have to go to the home, then paragraph, then click on the shading, and these many colors will come there. Okay, so आप इस कलर को चूज करके क्या कर सकते हैं, आपके बॉर्डर्स को कलर दे सकते हैं. देखिए, देयर इज अनदर वे टू ऐड द शेडिंग टू द टेक्स्ट. क्लिक ऑन द होम, देन टैब होम टैब, देन क्लिक द बॉर्डर बटन, देन बॉर्डर्स एंड देन शेडिंग्स. अगर इस तरीके से हम करते हैं तो हमारे जो बॉर्डर्स है वो शेडिंग में आएंगी. ठीक है, मतलब कलर्स में आएंगी. यहाँ आप अपने पेपर, आपने जो भी लिखा है, यू कैन गिव द कॉलम्स टू देयर. ओके, आप बहुत बार टेक्स्ट पे देखते होंगे, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में देखते होंगे कि आपके ये जो पेजेस होते हैं बहुत बार ऐसे 2 कॉलम्स में या 3 कॉलम्स में डिवाइड होते हैं. तो इस तरीके के कॉलम्स भी आप क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट को दे सकते हो. तो कैसे देंगे, यू जस्ट हैव टू गो फर्स्ट पेज लेआउट, देन सेटअप ग्रुप, देन click the column, so easily your page will get the column. Okay student, अब हम देखते हैं नया टॉपिक. द टॉपिक नेम इज मेल मर्ज. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल मर्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, मेल मर्ज का मतलब होता है द सेम लेटर और इन्विटेशन और समथिंग यू आर सेंडिंग टू मेनी पीपल. ओके, मतलब एक ही चीज़ आप बहुत सारे लोगों को जब भेजते हो, जैसे कि इन्विटेशन कार्ड हो गया, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, या फिर नोटिस हो गया, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप एक से ज़्यादा लोगों को भेजते हैं, तो वो हम मेल मर्ज इस ऑप्शन के थ्रू करते हैं. ओके, सो हाउ यू विल डू, आप इसको किस तरीके से करोगे? तो सबसे पहले आप ये जो हमारा MS वर्ड 2010 का जो विंडो है उसको समझिए. आप जब विंडो ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपको क्या दिखेगा, बार दिखेगा. द फर्स्ट वन इज़ द, ये जो है ये क्या है, फाइल है. देन यहाँ पे होम, देन इंसर्ट, देन पेज लेआउट, देन रेफरेंस, देन मेलिंग, देन रिव्यू व्यू. आपको बाकी की चीज़ें छोड़ देना है. यू हैव टू गो टू द मेल मर्ज. ओके, सो मेल मर्ज जब हम ओपन करेंगे तो क्या दिखेगा, आप जब मेल मर्ज ओपन करेंगे तो इस तरीके के ऑप्शंस दिखेंगे. देन आपने ये वाला स्टार्ट बाय स्टेप मेल मर्ज, इस विजार्ड को क्या करना है, क्लिक करना है. ठीक है, जब आप इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जब देखिए हम आ गए वहाँ पे, पहले तो हमें जो डॉक्यूमेंट को मेल मर्ज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट दैट, देन क्लिक ऑन द मेल मर्ज. फिर आपको इस तरीके से ऑप्शंस दिखे थे ना, उसमें से हमने लेटर को सिलेक्ट किया. फिर हमने क्या किया, वो यहाँ पे इस तरीके का क्या आ जाता है, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा. फिर ये ऑप्शन आने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, देन यू हैव टू फॉलो द आगे के जो स्टेप्स है आपको फॉलो करने होंगे. स्टेप बाय स्टेप आप जब जाओगे तो आपको आएगा क्लिक द करंट डॉक्यूमेंट, फिर आएगा नेक्स्ट रिसिपेंट्स, और फिर आएगा आपको टाइप द, मतलब आप किसको भेजना चाहते हो उन रिसिपेंट के नाम लिखने पड़ेंगे. फिर टाइप अ न्यू लिस्ट, क्रिएट अ न्यू एड्रेस. ये सब होने के बाद देन यू विल क्लिक, और इसके बाद जो है आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मेल है, कहाँ चला जाएगा, आप जितने लोगों के एड्रेस यहाँ पे फिल करे हो सबको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. देखिए, आप अगेन यहाँ आ सकते हो. ठीक है, देखिए हमने एड्रेस की लिस्ट बना ली है यहाँ पे. ओके, देन हमने उसमें से जितने लोगों को भेजना है उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, और देन हमने क्लिक ओके पे क्लिक कर दिया है.
ठीक है। आप किसी भी एड्रेस को ब्लॉक भी कर सकते हो या फिर नया एड्रेस उसमें ऐड भी कर सकते हो। देन देखिए इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर करके आएगा, मतलब आप देख सकते हो कि भाई आपने जिन जिन को भेजा है, किस किस के एड्रेस है और आपका लेटर कौन सा लेटर भेज रहे हो वह सब यहाँ पे दिखेगा। देन यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फाइनली आपका ये मेल मर्ज हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आप अगर देखिए फिर आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो डायरेक्टली प्रिंटर के थ्रू, या फिर इंडिविजुअली आपके लेटर को क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। जब दूसरी बार आप मेल मर्ज ओपन करोगे और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज इसको क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है इसको अटैच होके आएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने मेल मर्ज टॉपिक को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब देखिए कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि व्हाट आर द कंप्यूटर एटिकेट्स। आप जब कंप्यूटर लैब में जाते हो तो क्या एटिकेट्स आपने फॉलो करना चाहिए। लीव योर वर्क स्पेस एज यू फाउंड इट। आप जब गए थे कंप्यूटर लैब में तो जिस तरीके से लैब था, मतलब जिस तरीके से चेयर्स एंड आपके जो विंडो, आपके जो लैपटॉप्स या फिर आपके जो डेस्कटॉप थे वो जो पूरे शट डाउन थे, तो इस तरीके से आप जब जाओगे तभी भी आपने अपनी चेयर्स अरेंज करके रखनी है। ऑल्सो यू हैव टू स्विच ऑफ द पावर एंड मीन्स बिफोर दैट शट डाउन यूर PCs एंड स्विच ऑफ द पावर। इस तरीके से आपने जाना है। एग्जिट ऑल प्रोग्राम्स, कीप योर हेडफोन्स, कीबोर्ड्स एंड माउस प्रॉपरली एंड पुश इन योर चेयर। ठीक है, इस तरीके से एटिकेट्स आपको फॉलो करने हैं।